बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जो 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शन, टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, even function and odd function. Very important types of functions these two are, and plays a vital role not in mathematics but also in other branches of knowledge where the function is used. So we will see what is even function and what is odd function. And the last question of 1.1 exercise, which is question number 9, is also solved with the help of even and odd function. So let's see first what is even function and odd function. Odd function, first look at the definition of odd function. A function fx is said to be odd if f of minus x is equal to minus fx. This is the important portion of this definition. If I replace x by minus x, function is fx, and I replace x by minus x, and it gives minus f of x. And this condition holds for all the values of x lying in the domain d of f, domain of the function f होगी, which I have explained during the previous lectures. So f of minus x is equal to minus fx. If a function satisfies this condition, then it is called odd function. Look at the example. Fx is equal to x raised to power 3, and I have replaced f of x minus x. I have replaced x by minus x, and this x by minus x. Now minus x raised to power 3 is minus if this power is odd number, so it is minus x raised to power 3. If I just look at x raised to power 3, x raised to power 3 is equal to f of x. ये माइनस 7 वैसे ही आ जाएगा, तो ये x raised to power 3 को मैंने f of x लिख दिया है. So f of minus x is equal to minus f of x, and according to this is odd function. Now look at the definition of even function. A function fx is said to be even if f of minus x is equal to fx. I have replaced x by minus x, but the given function remains the same. There is no change, remaining x by minus x. Then such type of function is called even function. And this condition again holds for all values of the x which lie in the domain of f. Look at the example. Fx is equal to x raised to power 4. X is replaced by minus x. This x is also replaced by minus x. Minus raised to power even number is always positive. Minus raised to power odd number is negative. So this will be x raised to power 4. So f of minus x, x raised to power 4 is equal to f of x. So I replace x raised to power 4 by f of x. So finally I got f of minus x is equal to f of x. And this is condition of the even function. So this is the example of even function. So students, note the difference. In both type of function we replace x by minus x. If the answer is negative of the given fx is equal to x cube था, आंसर माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, और अगर वही है तो ये इवन फंक्शन है. Now I have written some important points which will help you to evaluate whether the given function is even or odd, especially when you are going to solve MCQs type questions. If all terms including x, वो तमाम टर्म जिसमें x आता है, यानी क्वेश्चन में जितने भी x दिए गए हैं, अब मैं सादा लफ्जों में कहूँ, हैव इवन पावर, वो सारे के सारे इवन हो तो वो इवन फंक्शन होगा. मतलब क्या है, देखें एफ एक्स है, ये मैं लिखता हूँ एक्स रेज टू पावर 6, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 2. यहाँ पे जो मर्जी आ जाए, मतलब यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ 5 आ गए, इससे कुछ नहीं. आप x की पावर्स को नोट करें. All powers of x are given an even number, so this is even function. आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. And if all the powers of x are given odd,
लाइक, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन होगा. सो आई हैव रिटन these 2 points as important point. If all the term including x, वो टर्म जिनमें x आता है have even powers, वो तमाम की तमाम जो है इनकी पावर इवन है, then it is even function. and if all powers are negative, odd, सारी की सारी अगर odd होंगी तो वो odd function होगा. in this way you can easily guess कि given function even है या odd है. अगर शार्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा. अगर एमसीक्यूज टाइप आया हुआ है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद trigonometric function. What about trigonometric function? As you all know, there are 6 trigonometric functions. Which are they? They are sin x, good, cos x, tan x and the reciprocal of the sin, cos, tan, sin, cot, cosecant, secant और cot, ये trigonometric function होते हैं. Among these 6 trigonometric functions, only 2 functions cos x and its reciprocal secant x are even function. अब दोबारा बात को मैं बताता हूं कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें cos और secant सिर्फ इवन होता है, बाकी चारों के चारों sin, tan, cosecant और cot ये ऑड फंक्शन होते हैं. आप इजीली ऑब्जेक्टिव में ये भी गेस कर सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है क्या ये इवन होगा या ऑड होगा. तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, अगर हमें cos और secant दिए गए हैं, दोनों दिए गए हैं या एक दिया गया है तो वो इवन फंक्शन होगा. और इसी तरह इन चारों में से कोई आता है तो ऑड फंक्शन होगा. बट मेक इट क्लियर इन योर माइंड, अगर कोई फंक्शन जो है वो इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन हो गया, ये नहीं मैंने बताया क्योंकि अभी इसको बताने की जरूरत नहीं थी. मसलन ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया. अब सपोज दैट मेरे पास आ जाता है, if I raise this one portion, I think there will be nothing wrong with you. कि अगर मैं इस टाइप का लिखूं, मतलब मुझे fx दे दिया गया है x raised to power 4 plus x raised to power 3. Now look at the term including x. ये क्या है? ये तो एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया. So what is the how can we guess the behavior of the function? Is it even or odd? नहीं, ये ना इवन होगा ना ऑड होगा. हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे. वो जो पॉइंट है उनको क्लियर करने का मेरा मतलब ये था, अगर तमाम टर्म्स में x की पावर इवन है वो इवन, तमाम टर्म्स में x की पावर ऑड है वो ऑड हो जाएगा. इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मुझे कहा गया fx इज इक्वल टू sin x, तो ये ऑड है. fx इज इक्वल टू cos x, ये इवन है. बट fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो neither even nor odd. Similarly, this is neither even nor odd. तो इस तरह आप गैस कर सकते हैं without going into the detail or calculation कि ये even function है या odd function है. Next क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1. इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ है डिटरमिन द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड. मसलन इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट fx is equal to x cube plus x. Is it even or odd? Now I have given you the tips how you can guess without going to the calculation is it even or odd. If all the terms include the including x have odd power then it is odd. x raised to power 3 ऑड नंबर है, x raised to power 1 ऑड नंबर है, हर x की पावर ऑड नंबर है, ये ऑड फंक्शन होगा. हम इसको सॉल्व भी करते हैं क्योंकि अगर आपको ये शार्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा. रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स. अब माइनस कॉमन ले तो x क्यूब प्लस एक्स माइनस ये x क्यूब प्लस एक्स, ये मेरी रकम है जिसको मैंने fx कहा होगा. ये माइनस वैसे ही है, नोट कर लें एंड पे जाके मैं कैसे लिख रहा हूँ. सो इट इज fx इज ऑड फंक्शन. ये कंक्लूजन का एक नंबर होता है. आपको 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आए, किया क्या होता है, सारा कुछ करके यहाँ पे इवन लिख दिया और की जगह पे सारे क्वेश्चन का सत्यानाश कर जाता है. नोट करें, आपने जो वैल्यूएट किया वही यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है. नेक्स्ट वाला जो है सेकंड पार्ट इसका fx
इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। पहले आप इसको वैसे कैसे करें, इज इट इवन और ऑड? क्या बताया था, सारी x की टर्म जो है उसकी पावर इवन नंबर हो वो इवन फंक्शन, सारी x वाली टर्म्स की पावर ऑड नंबर हो वो ऑड फंक्शन। What about x plus 2 whole square? Is it even or odd? If you look at only this part, तो आप कहेंगे ये इवन फंक्शन है, जो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें आप गैस करें, यानी ये उसके अंदर छुपा हुआ था। तो अब x की पावर इवन भी आ गई ऑड भी आ गई, तो जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियली गेस करना बताया था, ये इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर 2 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4, ये स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इट एफ एक्स? नो, एफ एक्स होता तो प्लस 4x ना, तो f ऑफ माइनस एक्स है, ये एफ एक्स नहीं बना। अब मैं माइनस कॉमन लेके देखता हूं, माइनस कॉमन का मतलब है इनके साइन बदल जाएंगे। अब क्या हुआ, क्या ये एफ एक्स बना? नहीं, फिर एफ एक्स नहीं बना। सो दोनों सूरतों में अगर मैं कॉमन लेता हूं तो भी वो एफ एक्स नहीं बनता, नहीं कॉमन लेता हूं फिर भी नहीं बनता। एज एफ ऑफ माइनस एक्स, ये ना तो एफ एक्स बन रहा है और एफ ऑफ माइनस एक्स ना ही ये माइनस एफ एक्स बन रहा है। सो क्या कंक्लूजन लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट इसका आ जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल अंडर रूट। नाउ आई वुड लाइक कि मैं क्विकली इन चीजों को सॉल्व करवा दूं। ये f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस एक्स ही रहेगा, इसकी पावर नहीं है जो हम इसको देखते थे। ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है। माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बन गया। अब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये रकम है जिसको आपने एफ एक्स लिख लेना है। सो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। एफ एक्स ये दिया गया था, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। तब आपने ये माइनस यहाँ पे लिखा, ये बन जाएगा जिसको एफ एक्स कहते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया। अब इसका स्टूडेंट एक पार्ट जो है वो मैं और करता हूं, तो आप लोगों को एफ एक्स, चलिए ये पहले ये वाला भी कर ही लें। अब दोनों एक्स की पावर्स जो हैं वो ऑड हैं, लेकिन देखते हैं ये बनता क्या है। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये देखिए ये एफ एक्स तो नहीं है, नजर आ रहा है। माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो x प्लस 1 हो गया, नीचे माइनस एक्स प्लस 1। नोट दिस लाइन और दिस स्टेप। ये मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें x को माइनस को कॉमन लिया। अब ये माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये दोनों प्लस हो गए, नीचे से नहीं माइनस ले रहा, उससे क्या होगा? फिर तो माइनस माइनस से कट गया, कुछ भी मैंने कॉमन ना लिया, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वैसे। फिर देखें क्या ये एफ एक्स बना है? नो। सो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये इसी तरह एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/3। ये आप लोग नोट करें मैंने क्या किया, 2/3 को मैंने 2 अलग कर लिया और 1/3 करके ये अलग कर लिया। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2/3 आ जाना। क्लियर होगी ये बात?
अब माइनस एक्स की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1/3। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो तो 2/3 हो गया, जो कि एफ एक्स ही हो जाएगा, और ये भी एक इवन फंक्शन प्रूव हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इवन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो आप कमेंट में मुझको ज़रूर बताएं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।